سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے۔ سواگت ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بدی کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، موب لنچنگ کے خلاف آندولن کریں گے چندر شیکھر آزاد، راون بولے ہمارے لوگوں کی جان سستی نہیں، سرکار 1 کروڑ روپے کا معاوضہ دے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بدی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے۔ کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ سبھی کے سامنے، میری خوش نصیبی ہے کہ بڑے ٹوٹے پھوٹے سے مصرعے ہیں۔ بہت پہلے شروع میں جب ذرا سی بھی سمجھ نہیں تھی، اب بھی مجھے لگتا ہے کہ ذرا سی بھی شاعری کی سمجھ نہیں ہے، لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ درد گانے کے لیے نہ تو کسی زبان کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، نہ بہت عروج اور گرامر کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ درد کی اپنی ایک الگ زبان ہے، بس آپ اسے گنگنا دیتے ہیں اور وہ دنیا کا درد بن جاتا ہے۔ میں نے وہی کوشش کری ہے، میں نے خود کو کبھی کسوٹی پہ نہ تو کسنے کی کوشش کری اور نہ میں اس لائق تھا کہ میں بہت بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکوں، لیکن یہ ان کا بڑپن ہے کہ وہ اپنے قدموں میں جگہ دیتے ہیں اور میں کھڑا ہو کر کے کچھ درد گا لیتا ہوں، اپنا مقصد پورا کر لیتا ہوں۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے۔ کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ ایک نظم بہت دل کے قریب ہے، وہ سنا کے ہاں میں سنا دوں گا، اس کا 2 بند انشاءاللہ سنا دوں گا، لیکن آپ کے ہاں ایک ایسا سانحہ گزرا ہے جو آپ سب کو یاد بھی ہوگا، اور اس ایک حادثے نے پوری دنیا میں بہت لوگوں کی آنکھیں نم کریں۔ آپ ہی کے ہاں کسی نے ایک شعر کہا تھا کہ رستہ نہارتی رہیں مائیں تمام رات، بچے سبھی اسکول سے جنت چلے گئے۔ 200 کے آس پاس بچوں کی جو ایک موت آپ کے ہاں پشاور اٹیک ہوا تھا، اس دوران ایک نظم میں نے کہی تھی اور میرا من کر رہا ہے کہ آج میں سناؤں، اور بہت درد میں ڈوب کے بہت رو کے میں نے وہ نظم کہی تھی۔ اور اس بیچ پوری دنیا کو جب دیکھتا ہوں، نظر دوڑاتا ہوں، تو وہاں سے شروع کریے تو فلسطین سے لے کر کے عراق سے لے کے سیریا ہوتے ہوئے ایسے ایسے بچوں کی تصویریں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں کہ بس آپ ان تصویروں کو صحیح سے دیکھ لیں تو شاید نیند تو نہیں آ سکتی آپ کو، اگر ذرا سا بھی حساس دل رکھتے ہیں آپ کو۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کس سے اپنا درد گاؤں، کس سے اپنی بات کہوں، کس سے رونا روؤں، دنیا کے سامنے جا کے کیا کہوں، سب تو بے حس ہو چکے ہیں۔ پھر لگتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اب جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اس سے رونا روؤں اپنا۔ میں ایک نظم سناتا ہوں، سنے گا صاحب کے۔ خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، لہو تر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں،
यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। नाज़रीन, इमाम प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्का मुकर्रमा में खड़े हुए और 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, क्या मैंने पहुंचा दिया? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की बारगाह में आह वजारी करने वाले थे, उठे और अर्ज किया, जी हाँ, मैंने अल्लाह ताला को गवाह बनाता हूँ कि आपने पहुंचा दिया। आपने लोगों को इस्लाम के लिए खूब उभारा और आपने उसके लिए खूब कोशिश की और नसीहत फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ज़रूर गालिब होकर रहेगा, यहाँ तक कि कुफ्र को उसके ठिकानों की तरफ लौटा दिया जाएगा, और यकीनन तुम इस्लाम को फैलाने के लिए समुंदर का सफ़र भी करोगे, और लोगों पर ज़रूर ऐसा ज़माना आएगा जिसमें लोग कुरान करीम सीखेंगे, इसकी तिलावत करेंगे और कहेंगे, हमने पढ़ लिया और जान लिया, अब हमसे बेहतर कौन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इन लोगों में कोई खैर हो सकती है? यानी इनमें ज़र्रा बराबर भी खैर नहीं है, और दावा है कि हमसे बेहतर कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, ये कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, ये लोग तुम ही हैं में से होंगे, यानी इसी उम्मत में से होंगे, और यही लोग दोज़ख का ईंधन हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होते हैं, और उन लोगों को भी नाराज़ कर देते हैं जिन्हें अल्लाह ताला को नाराज़ करके खुश किया था। और जो शख्स अल्लाह ताला को खुश करने के लिए लोगों को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला उससे खुश होते हैं, और उन लोगों को भी खुश कर देते हैं जिनको अल्लाह ताला को खुश करने के लिए नाराज़ किया था। यहाँ तक कि इन नाराज़ होने वाले लोगों की निगाह में उस शख्स को अच्छा फरमा देते, और उस शख्स के कौल और अमल को इन लोगों की निगाह में मुज़य्यन कर देते हैं। हज़रत असवद बिन असरम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मुझे वसीयत फरमा दीजिए। इरशाद फरमाया, अपने हाथ को काबू में रखो कि इससे किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। मैंने अर्ज़ किया, अगर मेरा हाथ ही मेरे काबू में न रहे तो फिर और क्या चीज़ काबू में रह सकती है? यानी हाथ तो मेरे काबू में रह सकता है। इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो। मैंने अर्ज़ किया, अगर मेरी ज़बान ही मेरे काबू में ना रहे तो फिर और क्या चीज़ काबू में रह सकती है? यानी ज़बान तो मेरे काबू में रह सकती है। इरशाद फरमाया, तो फिर तुम अपने हाथ को भले काम के लिए ही बढ़ाओ और अपनी ज़बान से भली बात कहो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने बारे में मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। नंबर 1, जब तुमसे कोई बोले तो झूठ न बोले। नंबर 2, जब वादा करे तो वादा खिलाफी न करे। नंबर 3, जब किसी के पास अमानत रखी जाए तो खयानत न करे। नंबर 4, अपनी निगाहों को नीचे रखो, यानी जिन चीज़ों को देखने से मना फरमाया गया है इन पर नज़र न पड़े। नंबर 5, अपने हाथों को नाहक मारने वगैरह से रोके रखो। नंबर 6, अपनी शर्मगाह। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला की इस तरह इबादत की कि उनके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, नमाज को कायम किया, ज़कात की अदायगी की और अमीर की बात को सुना और माना, अल्लाह ताला उसको जन्नत के दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से वो चाहेगा जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और जिसने अल्लाह ताला की इस तरह इबादत की कि उनके साथ किसी को शरीक न ठहराया, नमाज कायम की, ज़कात अदा की और अमीर की बात को सुना लेकिन उसे न माना, तो उसका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है, चाहे उस पर रहम फरमाए चाहे उसको अजाब दें। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहाद में निकलना तो 2 किस्म है। जिसने जिहाद के लिए निकले, मैंने अल्लाह ताला की खुशनुदी की मकसूद बना दिया, अमीर की फरमाबरदारी की, अपने उम्दा माल को खर्च किया, साथी के साथ नरमी का मामला किया और हर किस्म के फसाद से बचावा, तो ऐसे शख्स का सोना जागना सबका सब सवाब है। और जो जिहाद में फ़ख्र और दिखलाने और लोगों में अपने चर्चे कराने के लिए निकला, अमीर की बात न मानी और ज़मीन में फसाद फैलाया, तो वह जिहाद से खसारे के साथ लौटेगा। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम।